sir. Yes. So in this MATLAB window, how many variables are there? कितने variables बन चुके हैं? सागर बताइए. सागर कितने variables बन चुके हैं अब तक? Just see the workspace window and count them. So one variable is product, one is A, one is answer, one is B, C, X, Y. How many variables? Sagar, can you count it? Pratyush, can you count it? 7. 7 बने हैं ना? Yes. 7 variables are there. Good. So just so 7 variables are available in the workspace. So I can call anyone. I can call product. So what I have to type? Product. What will be my answer? 952. And if I write product with a small p, what is my answer? Error. Error, because this variable is not available, undefined function or variable. Okay, and he's suggesting also, did you mean product? Yes, then it will give you the answer 952. Okay, so I'm clearing it. Once the variable is declared, it can be called. Okay, suppose you write 67. You write 67 and you are not providing any variable. When you write z equal to 67 means you are providing variable z. Z is a next variable. And if you are not providing the variable, then what will happen? MATLAB will create a variable, default variable, whose name is answer. So answer equal to 67. So the value of the answer variable is 67. See in the workspace window, it is 67. If you create another variable 98, another value 98, you are not providing the variable, then the default variable value will be again, it will be 98. It was previously 67, but now it is 98. So answer is a default variable and it is a current variable. Once the value is 98, 67 is not existing in that memory. तो when जब भी आप वेरिएबल प्रोवाइड नहीं करोगे, वेरिएबल देना भूल जाओगे, तो मैटलैब अपनी तरफ से एक आंसर वेरिएबल, डिफॉल्ट वेरिएबल जनरेट कर देता है. ठीक है, तो डिफॉल्ट वेरिएबल की बात हो गई. अब मान लीजिए हम वेरिएबल ए को कॉल करते हैं. सो वेरिएबल ए इज कॉल्ड 1 4 7 10 13 16 19. ठीक है, इफ आई राइट a power 2, it will give you the error because matrix multiplication is not possible. But if I write a dot power 2, I am using dot operator. So with this dot means it is element by element operation. So it will give you 1 square, 4 square, 7 square, 10 square in this way. So your answer will be 1, 16, 49, 100. Now it is not error. Now it is not a error. So a dot power 2 means it will square all the values available in that matrix. Clear? Similarly, you can write a to the power 3, a dot power 3. Then it will give you the answer cube of each and every value. So 1 cube is 1, 4 cube is 64, 19 cube is 685. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? I am again clearing it. Now I am calling a to the power 5. So a dot power 5. So what will be the answers? Can you guess? 5. Answers are 1. 1 to the power 5 is 1. 4 to the power 5 is 1024, and so on. 7 to the power 5 is 16807. In this way. Okay. And answer is a default variable. So एक नया चीज आपको मिल गया a dot power 5. Now
Suppose I am writing first value is 12. ठीक है, then value is 34. What will be the answer? सर आंसर क्या आएगा? 12 कोलन 1234 सर वो आएगी ना मतलब हाँ कॉलम्स 1234 की 1234 का कॉलम्स आएगा. नो, कॉलम के लिए तो सेमी कोलन होता है ना, ये तो कोलन है. यस सर कोलन सॉरी means रो range. रो 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 हाँ नहीं, तो वैल्यूज क्या होंगे इसमें? व्हाट विल बी द वैल्यूज? सर आंसर 1234 1234 नहीं होगी. इट विल बी 12. फर्स्ट वैल्यू इज 12, then 13, then 14, then 15. It will give you the continuous values between 12 to 34. So the answers are 12, 13, 14, 15, 16, 17. It is a range, है ना? जब भी आप देखें कोलन, कोलन means it is a range. So it is a range between 12 and 34. First value is 12, last value is 34. So it is a range between 12 and 34 with a default increment of 1. है ना? मैटलैब को यदि आप इंक्रीमेंट नहीं बताओगे तो वो डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 मान लेता है. ठीक है, रेंज में. और आप इसी कमांड को यदि आप ऐसे ही यूज करते 12, 34. पंसर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है हल्की सी. So if you write in this way, first value is 12 with an increment of let 4 and the last value is 34. Now you are providing three values. Initially you are providing two values, 12 and 34. So MATLAB is considering first value and last value and default increment is 1. Once you provide three values, so first value is 12, the middle value is the increment and last value is the last value. So हमेशा middle value increment होती है. यदि आप 3 वैल्यू देंगे तो मिडिल वैल्यू को इंक्रीमेंट कंसीडर करेगा. सो व्हाट विल बी द आंसर नाउ? इफ यू प्रेस एंटर, सो आपके आंसर्स क्या आएंगे बताओ? 12 16 20 yes, very good. So first is 12, then 16, then 20 and last is 32. So that will be your answer. ठीक है, तो ये सर बात अगर हमें हाँ, बोलिए. 4 वैल्यूज देनी हो तो 4 वैल्यूज मींस मतलब अगर हमें 1 फिर हम इंक्रीमेंट कर दें एंड फिर 20 फिर हम 30 कर दें तो वो हाँ. डिफॉल्ट वेरिएबल हो जाएगा. हाँ, यदि आप करते हैं 1:30, मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल दिया ही नहीं. नहीं है सर, ना? इसके बाद हमने 20 लिया. इसके बाद एक और कोलन लगा दिया आपने, हैं? यस सर. और उसके बाद आपने क्या आंसर दिया? 20. उसके बाद एक और 20 दिया या नहीं 25. उसके बाद एक और कोलन लगा के 25 दे दिया. ये यस सर. नहीं, इसका कोई सेंस ही नहीं है ना? आप सर जैसे 1 से 20 तक ऐसे करके नहीं आएगा? नहीं, 1 से 20 और इसमें इंक्रीमेंट कितना मानेगा मैटलैब? 30, है ना? अब 1 में इंक्रीमेंट करिए 30, 1 + 30 कितना हो गया? 31. नहीं सर, मतलब मैं एक वैल्यूज बोल रहा था, आप 30 की जगह 3 कर दीजिए. हाँ, कर देते हैं. पहले आप इसी को चला के देख लो आंसर क्या आ रहा है. ठीक है, 1 और 25 के बीच में उसने इंक्रीमेंट ले लिया 1, 1, 30, 20, 25. ठीक है, अब इसी वैल्यू को मान लीजिए आप यहाँ पे 30 की जगह पर 3 कर देते हैं, मान लीजिए, है ना? राइट, तब भी वही आ जाना चाहिए आंसर. सेम आंसर आ रहा है. तो आपने 4 वैल्यू दे भी दी तब भी कोई सेंस नहीं निकला उसका. फर्स्ट तो फिर सर डिफॉल्ट वेरिएबल हो जाएगा, मतलब कि एक एक का गैप देके. हाँ, और क्या, वो डिफॉल्ट ही लेगा उसको, है ना? वो उसको कंसीडर ही नहीं करेगा, बस फर्स्ट और 25 के बीच में आपको डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा. ठीक है, तो मैं इसे क्लियर करता हूँ. नाउ इट इज क्लियर. CLC, तो मैंने आपको रेंज ऑपरेटर बता दिया. राइट, अब मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा. ठीक है, अब मैं सारे वेरिएबल क्लियर कर देता हूँ. क्लियर, सो ऑल द वेरिएबल्स विल बी क्लियर्ड फ्रॉम द मेमोरी. क्लियर ऑल लिखूं या सिर्फ क्लियर लिखूं, एक ही बात है ना? ओनली क्लियर विल क्लियर ऑल द वेरिएबल्स and clear all will also clear the all the variables. Clear and clear all are same. So now I am making a matrix. Let the matrix is A equal to, in bracket I am writing 1 2 3 4 semicolon, then I am writing 20 21 22 23 24 and 25, then again semicolon, then I am writing 0 78
56, 32, मैं कोई भी रैंडम वैसे ही वैल्यू ले रहा हूँ, है ना। देन अगेन सेमीकोलन या सर सेमीकोलन ये तो एरर बोल जाएगा ना? ये क्या बोल जाएगा? एरर? यस सर। क्यों? एरर का रीजन बताइए। सर 21, 22, 23, 24, 25 से 5 वो हो गए ना? हाँ तो है ना, 5 हो गए, तो या तो इसको एक को हटा देते हैं हम। अब बताइए अब एरर आएगी क्या? नो तो नहीं आएगी, है ना। 1 2 3 4, 21 22 23 24 and 0 78 56 32। ठीक है, अगेन आई एम यूजिंग द सेमीकोलन, I am using the semicolon and I am writing 101, 103, है ना, और 65 and 45। बताइए क्या साइज होगा इस मैट्रिक्स का? 4/4। 4/4, है ना। I am again using a semicolon, है ना। Let the answers are 11, 12, 13, 14. Now the size is 5/4, I think. Yes, yes. So if I press enter, the size is now 5/4. Can you find the determinant of this matrix? इसका determinant निकाल सकते हो आप 5/5 का? So let I am trying to find the determinant det of A. A is the name of the matrix, so I am using det A. So let's find the determinant of this matrix. So what is the answer? Matrix must be a square. The answer is 5. Determinant निकल ही नहीं सकता क्योंकि इसका साइज क्या है? 5/4 है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा। हाँ बोलिए बोलिए। एक घंटे बाद, है ना? हाँ 1 घंटे। ओके। सो इसका साइज क्या था? 5/4 और डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अब ये 5/4 का जो मैट्रिक्स है इसमें से मैं एक रो कम करना चाहता हूँ जिससे ये 4/4 हो जाए। ठीक है, तो मैं अब एक रो को कैसे डिलीट कर सकता हूँ? तो अब ये भी चॉइस हो सकती है कि मैं तो थर्ड रो को डिलीट करना चाहता हूँ, है ना। रिक्वायरमेंट कोई भी हो सकती है कोडिंग के दौरान। I want to delete the third row और I want to delete the first row और the fourth row। कौन सी रो को आप डिलीट करना चाहते हैं बताइए? एनीवन चॉइस कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से। Which row you want to delete from this matrix? Fourth। You want to delete fourth, है ना? Okay, so I am writing A is the name of the matrix. Then I am writing row number 4, है ना, comma, column, all the columns, first, second, third, fourth, पूरी की पूरी रो डिलीट होनी है ना। So I am writing only colon. Colon means all the columns. ध्यान से समझिएगा इस सिंटेक्स को। A is the name of the matrix, 4 is the number of row which I want to delete, and colon means all the columns in that row, bracket close, equal to blank. Blank means ये वाली रो बिल्कुल डिलीट हो जाए। So A4 comma colon equal to blank. What is the output on the screen? See the output. This was the initial output and this is the output after deleting the row. So row number 4 is deleted now. 101, 103, 65 and 45 is not appearing here. ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डिलीशन कमांड, है ना। We can delete any row from a matrix or we can delete any column from a matrix. ठीक है, तो अभी कॉलम को भी डिलीट करेंगे हम, लेकिन उससे पहले अब हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो let I want to find now the determinant of matrix A because now it is a square matrix. So that bracket A, what is the answer? Answer is 4.4409 into 10 to the power minus 13. ठीक है, this is the answer for the determinant. Done. अब मान लीजिए you want to delete column number 3, तो आपकी कमांड क्या होगी जरा बताओ। देखो, कॉलम को हम डिलीट कर सकते हैं, रो अभी हमने डिलीट किया ही है ना। तो मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे दो तरह की इंडेक्सिंग होती है। क्या होती है? दो तरह की इंडेक्सिंग होती है। तो जरा वो दो तरह की इंडेक्सिंग समझिए पहले। आई एम कॉलिंग द मैट्रिक्स ए नाउ। व्हाट इज द साइज ऑफ द मैट्रिक्स ए? 4/4। ठीक है, सो इट इज हैविंग हाउ मेनी एलिमेंट्स?
it is having 16 elements. So first element is 1, second element is 21, third element is 0, fourth element is 11, fifth element is 2, sixth element is 22, and so on. ठीक है? So if I want to call the sixth element, then I will write a bracket 6. A bracket 6 means you want to call the sixth element. ठीक है? तो MATLAB में column wise working होती है पहले. This is the first element 1, second element is 21, second element is not 2, second element is 21. So first, second, third, fourth, fifth, sixth. What is the sixth element? 22. Let's press enter and see the answer. What is the answer now? 22. ठीक है? Suppose I write A 15. क्या आंसर आएगा बताओ? अब मैं 15वें एलिमेंट को कॉल करना चाहता हूँ. 32. Answer is 32. Very good. Very good. So this indexing is known as linear indexing. ठीक है? और ये कॉलम वाइज चलती है इंडेक्सिंग. So this is a linear indexing. ठीक है? अब मैं मान लीजिए इस 22 को दूसरी तरीके से कॉल करूंगा, 22 को, 32 को भी. तो 22 के बारे में देखिए, ये कौन सी रो में है एलिमेंट? इट इज इन रो नंबर 2. और ये कौन से कॉलम में है? इट इज इन कॉलम नंबर 2. सो आई कैन राइट a ब्रैकेट 2, 2. 2 मीन्स सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम. तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन है, so the intersection part is 22. If you press enter, then you can again get 22. ठीक है? तो इस इंडेक्सिंग को हम कहते हैं रो कॉलम इंडेक्सिंग, है ना? मैंने एक आपको दो तरीके से 22 को कॉल करके बताया है. एक a ब्रैकेट 6. तो a ब्रैकेट 6 ये कौन सी इंडेक्सिंग है? लीनियर इंडेक्सिंग. और a2, 2 कौन सी इंडेक्सिंग है? रो कॉलम इंडेक्सिंग. इसमें आप रो भी बताते हैं और कॉलम भी बताते हैं. ठीक है? और उसका जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो आपको स्क्रीन पर विजुअल हो जाता है, जो वो कॉल हो जाता है स्क्रीन. तो दिस इंडेक्सिंग पार्ट इज नाउ क्लियर. आई एम अगेन doing CLC. I am again calling A. So A is in front of you. Now I am interested in calling the central part of this matrix. I am interested in calling the central part of this matrix. So what is the central part? Central part is 22, 23, 78, 56. So how can I call it? So for calling the central part, I will write A is the name of the matrix. Then in bracket, I will write the row numbers. So what are the row numbers? 22, 78. I am interested in this central part. 22, 78, 23, 56. तो ये central part कौन-कौन सी row में included है? So this is included in row number 2 and row number 3. So I will write 2:3. 2: means 2 to 3. So second row and third row. Now this part is included in how many columns? So it is included in second column and third column. So I will write 2:3. So what I have done? Matrix A, second and third row, second and third column. So press enter. Are you getting the central part on the screen? प्रत्युष, ये समझ में आया? Yes sir. ये मैंने सेंट्रल पार्ट कॉल करके दिखाया है आपको, है ना? जब आप कोडिंग करेंगे, सिमुलेशंस करके प्रोग्राम्स बनाएंगे, आप बड़े-बड़े करेंगे, सिस्टम्स को एनालाइज करेंगे, देन ये सारे फंक्शंस आपको काम में आने वाले हैं, है ना? कभी आपको कुछ निकालना होगा, कहीं से निकाल के कहीं दूसरी जगह पहुंचाना होगा, वेरिएबल्स में वैल्यू ट्रांसफर करनी पड़ेगी, लाइक दैट. सो आपने सेंट्रल पार्ट निकाल दिया. ठीक है? अब मान लीजिए मैं लिखता हूं स्क्रीन पर ब्रैकेट ए. क्या आंसर आएगा बताओ? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इस कमांड से? एनीवन? C++ तो पढ़ा हुआ है आप सबने, कुछ उसी तरह के लॉजिक हैं. ए और ए स्पेस ए क्या होगा बताओ? देखो ए का साइज क्या है? 4x4. दूसरे वाले ए का साइज क्या है? 4x4. दोनों को ऐड कर दो, दोनों पास पास आ गए. तो ये भी 4x4, ये भी 4x4. तो टोटल साइज क्या हो गया? 4x8 है. प्रेस एंटर, देखिए 4x8 आता है कि नहीं. सो द आंसर इज कमिंग 4x8 नाउ. ये देखिए कितनी रो हैं? 4 रो. कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8.
और देखो वही मैट्रिक्स अगल बगल रख गए हैं, ये पूरा ए मैट्रिक्स है और फिर ये भी ए मैट्रिक्स है, ए के बगल में आपने ए को रख दिया है। सो द नाउ द साइज इज 4/8। ठीक है, मान लीजिए मैं लिखता हूं ए ए ए, अब बताओ क्या आएगा आंसर? 4/12। 4/12, very good. So now the answer is 4/12. So MATLAB is very effective in the calculation of the matrices, है ना? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मान लीजिए अब मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूं, ये मैंने क्लियर किया। अब मैंने एक मैट्रिक्स बनाया B इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट और मैंने उसके अंदर लिखा A, A। क्या आंसर आएगा? 8/4। 8/4 आएगा ना आंसर। नाउ B is a matrix in which 8/4 is the size of the B। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसी कमांड को ऐसे लिखता, C इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट A सेमीकोलन A। अब क्या एक्सपेक्ट करते हो आप, बताओ? सर 8/4 आएगा अब। 8/4, वेरी गुड। पहले क्या था, A के साइड में A आ रहा था, अब A के जस्ट बिलो A आएगा, है ना? So 4/4 just below 4/4, so the size is 8/4 finally. So the answer is 8/4. समझ में आ रहा है? अब देखो उसका साइज क्या है 4/8 और इसका साइज क्या है 8/4। क्या B और C का मल्टीप्लाई हो सकता है? पॉसिबल है? यस सर। पॉसिबल है, क्योंकि उसका साइज 4/8 है, उसमें 8 कॉलम है और इसके अंदर 8 रो हैं, उसके कॉलम इसके रो आपस में इक्वल हैं, so matrix multiplication is possible. So you can multiply them. Let M is another variable. You can multiply B into C. B into C. क्या आंसर आएगा बताओ? क्या एक्सपेक्ट करते हो? कितने बाई कितने का मैट्रिक्स आएगा ये तो बता सकते हो? 8/8। 8/8 नहीं आएगा, 4/8 into 8/4, so the answer is 4/4. Press enter. So the answer is 4/4. देखो जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो, यदि पहला मैट्रिक्स m/n है, दूसरा मैट्रिक्स n/p है, तो आपका फाइनल आंसर m/p आता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर 4/8 into 8/4, so the answer is 4/4. ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में आपको कोई गलती नहीं मिलेगी मैटलैब में। 174 आएगा तो 174 आएगा, लास्ट वैल्यू 1888 है तो है। परफेक्ट, इट इज परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो m इक्वल टू b इंटू c। सपोज मैं अब ऑर्डर चेंज कर दूं, एक अनदर वेरिएबल n इक्वल टू c इंटू b। अब क्या होगा बताओ? अब साइज 8/8 आ जाएगा। यस सर। क्योंकि C का साइज क्या है 8/4 और B का साइज क्या है 4/8, तो 8/4 into 4/8, so the final size is 8/8 now. So press enter. So you are getting 8/8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और रो भी काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। समथिंग क्लियर इन माइंड, है ना? अभी तक मैं समराइज करूं तो क्या किया हमने अभी वाली क्लास में, सेकंड क्लास में, मैट्रिक्स में कैसे रो डिलीट होती है ना? अब मान लीजिए आप इसमें से कॉलम डिलीट कर दो, ये जो एक एन मैट्रिक्स है इसमें से कॉलम डिलीट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं एन थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, CLC एन को कॉल कर लेता हूं, दिस इज माई एन नाउ। अब इस एन में से पहला, तीसरा, पांचवा, 3 कॉलम, चलो पहले एक ही कर दो, कोई एक कॉलम डिलीट करो। कौन सा कॉलम डिलीट करना चाहते हो बताओ? विच कॉलम यू वांट टू डिलीट? सेकंड। थर्ड, है ना? चलो थर्ड ले लेते हैं। थर्ड कॉलम यू वांट टू डिलीट, है ना? तो क्या कमांड होगी? आई विल राइट नेम ऑफ द मैट्रिक्स n, देन ब्रैकेट, इन ब्रैकेट आई हैव टू राइट द रो नंबर एंड द कॉलम नंबर। तो आप कौन सी रो को डिलीट करना चाहते हो? सारी रो को डिलीट करना चाहते हैं। सारी के लिए कोलन वर्ड आता है, कोलन। कोलन मींस ऑल दी रोज, कॉमा। कौन सा कॉलम डिलीट करना चाहते हो? थर्ड कॉलम करना चाहते हो, जस्ट राइट 3। इस कमांड को अच्छे से समझिए। पहला वाला जो कोलन है, कॉमा के पहले जो कोलन है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉमा के बाद जो 3 है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और n इज द नेम ऑफ द मैट्रिक्स। तो जैसे ही आप इसको करने के बाद इक्वल टू ब्लैंक करेंगे तो ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो देखो अभी 8/8 का मैट्रिक्स है, अब ये ऐसा होने के बाद ये इसकी साइज क्या हो जाएगी? अभी 8/8 है, 8/8 है,
तो डिलीट होने के बाद साइज क्या हो जाएगी 8/7। प्रेस एंटर, काउंट कर लीजिए कॉलम, थर्ड कॉलम खत्म हो गया। देखिए C28 के बाद सीधे 204 आ रहा है, ठीक है। सो थर्ड कॉलम हैज बीन डिलीटेड, थर्ड कॉलम हैज बीन डिलीटेड, राइट। एन में से एक कॉलम आपने डिलीट कर दिया, राइट। अब मान लीजिए मैं इसको फिर से CLC कर देता हूं, मैंने एन को कॉल किया, एन का साइज क्या है 8/7। अब मैं इंटरेस्टेड हूं केवल कॉर्नर वैल्यूज को फाइंड करने में। व्हाट आर द कॉर्नर वैल्यूज? फर्स्ट वैल्यू इज 87, 417, 204, 944. These are the corner values. So how can I find these corner values in another matrix? I want to generate these values in another matrix. So let the name of the matrix is corner. You can give the name of the variable any variable name. Corner is the name of the variable now. Equal to, कैसे आप निकालोगे corner values? So name of the matrix is n. Put a bracket over here. Define the row, define the column. तो रो कौन कौन सी हैं? You are interested in the first row and you are interested in the last row, right? So you can write 1 comma, है ना? You can write first row and last row. तो कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? Just use the square bracket. In square bracket you give the first row and the last row. What is the name of the last row? Eighth row, है ना? Total there are 8 rows. So you write 1 space 8. It is the row designation. आपने रो बता दिया, अब आप कॉलम बता दीजिए. In which column you are interested? You are interested in first row and 8th row, and you are interested in first column and the last column. So first column means 1 and last column means 7. There are 7 columns. So you can again provide in square bracket 1 space 7. ढंग से समझ लीजिए इसको. N is the name of the matrix. ठीक है, N के अंदर फिर स्क्वायर ब्रैकेट तो ये ब्रैकेट तो आएंगे ही आएंगे. कॉमा से पहले आपको क्या डिफाइन करना है? नंबर ऑफ दी रोज डिफाइन करना है. सो यू आर इंटरेस्टेड इन फर्स्ट रो एंड 8th row, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग 1 space 8 in a matrix, and you are interested in first column and last column, that's why you are using 1 and 7, 1 space 7 in a square bracket. So by using this command you will be able to extract the corner values from the matrix n. So I am just putting enter. So are you getting the corner values? बोलिए, are you getting the corner values? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, you are interested. अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये चाहिए 944 से लेके 4112, है ना, और ये यहां से लेके यहां तक इतना चाहिए 269 तक. समझ में आ रहा है? कौन बताएगा इसकी कमांड? बताओ. 944 से लेके 1219 तक चाहिए, ये पूरा चाहिए 4112 है. 944 से लेके 4112 और ये पूरा यहां तक 5346 तक. प्रत्युष क्या आप बताएंगे? Yes, sir. मेरा क्वेश्चन समझ पाए? आई एम इंटरेस्टेड इन 944 से लेके 5346 तक, ये पूरा आ जाए. Okay. तो इसकी कमांड बताइए. सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम, n is the name of the matrix, then put bracket, in bracket put comma, before comma provide the row numbers. So in which rows you are interested now? 944 से 4112 कौन कौन सी रो हो गई? Fourth and Sir, seventh. sir, fourth, Fourth, fifth, sixth and sixth, seventh. seventh. So just write 4:7. 4:7 means 4, 5, 6, 7. Colon means range. Colon means range. So 4, 5, 6, 7. It's covered now. Now come to the column. In which columns you are interested? Sir, 3, 4, 4, 5, 8, and 6. 8. So just write 3:6. 3:6. ठीक है? And press enter. Are you getting the required values? Check it. Yes. जो आप चाह रहे थे वही आ गया. ठीक है. और ये कौन से वेरिएबल में चला गया? आंसर वेरिएबल में चला गया, क्योंकि मैंने वेरिएबल का नाम दिया ही नहीं था. मैंने पहले तो वेरिएबल का नाम दिया था कॉर्नर, यहां मैंने वेरिएबल का नाम नहीं दिया. दैट्स व्हाई MATLAB हैज जनरेटेड ए डिफॉल्ट वेरिएबल आंसर.
ठीक है, तो कुल मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग विद द मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स के साथ हम खेल कर रहे हैं। अभी तो हमने बहुत थोड़े से खेल किए हैं, मैट्रिक्स की कमांड्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मैटलैब के अंदर कि आप मैट्रिक्स को रोटेट कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, इसको डायगोनली ब्रेक कर सकते हैं, इसका अपर ट्रायंगुलर निकाल सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर निकाल सकते हैं, इसके इंडेक्स पे वर्किंग कर सकते हैं। तब मैट्रिक्स इज वेरी वेरी रिच फंक्शंस हैविंग इन मैटलैब। ठीक है, तो अभी हमने कुछ फंक्शंस पढ़े हैं। एक बुक बताता हूं आपको मैटलैब के लिए, डॉक्टर रुद्र प्रताप की बुक आती है ना, मैं बुक आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं स्टॉप शेयर कर लेता हूँ पहले, तभी आपको बुक ठीक से दिखेगी। हाँ, बुक दिखाई दे रही है आपको? दिख रही है? मैं इसका और फोटोग्राफ देके व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। ठीक है, तो दिस इज द बुक बाय रुद्र प्रताप, है ना, गेटिंग स्टार्टेड विथ मैटलैब। तो ये बुक आप लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आप इसको थोड़ा पढ़िए, तो आपको काफी चीजें इससे बेसिक्स मिल जाएंगी शॉर्ट में, देन यू कैन स्टार्ट योर सिमुलेशन वर्क। डन? तो बताइए, आज की क्लास को समराइज कौन करेगा? हु विल समराइज? व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। यस, कौन कौन पार्टिसिपेंट है मेरे साथ? बताओ। मेरे साथ पार्टिसिपेंट हैं लवकेश हैं, रोहित हैं, आकाश हैं, प्रत्युष हैं। यस, आकाश खटवानी। यस सर। आप समराइज कर दीजिए व्हाट वी हैव डन इन द टुडेज लैब। Sir, we have learned about some commands, basic commands, sir, clear, size and मैं जरा लिखता जाता हूँ। क्लियर पे काम किया, साइज पे काम किया, और CLC पे किया, TLC और and Transpose. transpose, sir. यस यस, ट्रांसपोज। जैसे कोई एक्स मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज एक्स डैश से आ जाएगा। The product. प्रोडक्ट पे भी, हाँ, मल्टीप्लाई पे काम किया हमने, है ना, प्रोडक्ट Yes, भी sir, multiply. मल्टीप्लाई किया, और And sir, size हो गया साइज हो चुका है, डिटरमिनेंट भी निकाला हमने, determinant भी sir. ठीक है, डिटरमिनेंट भी निकाला, इनवर्स भी निकाल सकते हैं, INV कमांड इज देयर। तो इफ यू विल राइट INV ऑफ A, देन इट विल गिव यू द इनवर्स ऑफ A, है ना। लेकिन इनवर्स निकालने के लिए जरूरी है कि द मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, the matrix must be square matrix, otherwise it will give you the error. So this is the inverse. So determinant, inverse, है ना, बहुत सारी फंक्शंस हैं। आइगन वैल्यूज यू कैन फाइंड, है ना, आइगन वेक्टर, हाँ, आइगन वेक्टर, ये सारे फंक्शंस हैं। तो वो जो बुक बताई है ना मैंने आपको रुद्र प्रताप वाली, उसके अंदर आपको और भी बहुत सारे फंक्शन, मैंने जस्ट एक आपको इनिशियल गो थ्रू दिया है टू डेवलप योर इंटरेस्ट। तो ये कुछ कमांड्स हैं, और बाकी आप बुक की हेल्प से जल्दी से उन्हें कवर करें, देन स्टार्ट योर प्रैक्टिकल्स। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल जो है, जो भी लिस्ट में हो, जितना आपने कर रखा है, ड्रिंकिंग मैन प्रॉब्लम है, पाई है, इन सबको आप करना शुरू करें। तो ये सारे कमांड्स, इसके अलावा हमने मैट्रिक्स क्रिएशन पे भी काम किया, मैट्रिक्स क्रिएशन, है ना। और मैट्रिक्स क्रिएशन के बाद यदि हमें कोई रो डिलीट करनी है तो रो डिलीशन पे भी काम किया हमने, कॉलम डिलीशन पे भी काम किया, है ना। वी कैन डिलीट मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स आल्सो, है ना। वी कैन एक्सट्रैक्ट, हमने एक्सट्रैक्शन पे भी काम किया, किसी मैट्रिक्स में से मुझे कुछ वैल्यूज निकालनी है, सो दैट इज नोन एज एक्सट्रैक्शन। तो हमने सेंट्रल पार्ट निकाला, है ना, कॉर्नर पार्ट निकाला, काफी सारा काम किया हमने। सेंट्रल पार्ट कैसे निकालेंगे, कॉर्नर पार्ट कैसे निकालेंगे, या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज चाहिए वो कैसे निकालेंगे। सो दिस इज एक्सट्रैक्शन, है ना। सो क्रिएशन, डिलीशन, एक्सट्रैक्शन, है ना। और इसके अलावा हमने इंडेक्सिंग पर भी काम किया। तो इंडेक्सिंग दो तरह की है, एक लीनियर इंडेक्सिंग है और एक आपकी रो कॉलम इंडेक्सिंग है, ठीक है। हमने इस पर भी काम किया, राइट। और क्या किया हमने, बताओ। ठीक है, तो दिस इज द समरी दैट वी हैव डन टुडे। सो आई थिंक इज सफिशिएंट फॉर टुडे। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, और कोई भी क्वेरीज आती हैं तो प्लीज डिस्कस कर लिया करिए, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग द क्वेरीज।
क्योंकि ये कोडिंग वाला जो वर्क है ना, यदि आप कहीं पर बीच में अटक जाएंगे तो फिर एरर आने लगेंगे, और एरर आने से फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होते हैं, है ना। तो डोंट फ्रस्ट्रेशन मत करिए, एरर आती है आने दीजिए, एरर आएंगी तो उनको दूर भी करना है, डिबगिंग इज देयर। तो यदि प्रॉपर्ली फोकस होकर काम करेंगे, देन योर एरर विल बी रिमूव्ड एंड योर प्रोग्राम विल रन, योर सिमुलेशंस विल रन। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट ए फाइल इन MATLAB, how to create a file, how to use the editor with the MATLAB. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टॉप शेयर करता हूँ, कोई क्वेरी हो तो प्लीज बोल दो, अदरवाइज आई विल एंड। क्लियर एवरीथिंग प्रत्युष? यस सर, क्लियर है। अभी जब यूज करेंगे तब पता चलेगा। तब और हाँ, तब फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।